The first cohort of The Good Politician met again for their second residential in March 2022. We relived our memories from our first residential held in August across Delhi and Punjab. We reconnected our community that had met for the past 6 months every week for online sessions. Having been each other's support system all this while, it was refreshing to meet again in person. The Good Politician रेसिडेंशियल 2 का कारवां हमें ले चला नागपुर, वर्धा और मुंबई। हम वापस मिले ये सीखने के लिए कि सर्वोदय की राजनीति की इस यात्रा में एक दूसरे को और अपने आप को और तैयार हम किस तरह कर सकें। हमारी रेसिडेंशियल 2 जो कि एक 15 दिन का रेसिडेंशियल था, उसकी तैयारी ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। जो कोर टीम है हमारी, वो काफ़ी सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए उसका डिज़ाइन और उसका करिकुलम डिसाइड करती है। एक तो ये है कि ये जो रेसिडेंशियल है वो एक 9 महीने लॉन्ग जर्नी के अंतर आता है और उसमें जो हमारा विजन ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट है उसमें हमारे पार्टिसिपेंट्स अभी कहाँ हैं, उसको हम नज़र में रखते हैं। दूसरा जो है, हमारे पार्टिसिपेंट्स से हमारी काफ़ी बातचीत होती है, 1-on-1 कॉन्वर्सेशंस होते हैं। I think when we came together as a group of people, none of us knew each other from where we are coming. It was a diverse community that came from 14 different states. I think what first residential did was it built a basic trust in the community so that people got to know each other, they got to know the personal stories, and the moment we got to know the personal stories of each other, we reached to a space of sharing our more difficult truths. In this residential, what I am seeing specifically in the second residential is that there is much more trust within the community. People are moving from safe space to a much more braver space. They are sharing about their own personal deep challenges that they are facing, not just in politics but within in their personal life, in their families. And what it is enabling is for each other to show mirror to each other, so that people are asking difficult questions, they are giving feedback on things which are often not spoken among friends. मैं मुख्य तौर पर छात्रों और युवाओं के बीच रहकर काम करता हूँ। मैंने पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक तौर पर संगठनात्मक कार्य में जो भी युवाओं की भूमिका रह सकती है और मैं अपनी राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कैसे युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकता हूं, इसके लिए मैंने कई कार्य किए हैं। मैंने जन यात्राएं निकालकर, संवाद यात्राएं निकालकर और पदयात्राओं के माध्यम से मुख्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को जानने का प्रयास किया है। सर्वोदय नेता या नेत्री जो है वो ऐसा एक व्यक्ति, वो कोई भी हो सकता है, समाज के कोई भी तबके का हो सकता है, वो राजनीति में हो सकते हैं या समाज सेवा में हो सकते हैं या आम जिंदगी में भी हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर 2 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। एक है कि समाज के हर तबके के हर व्यक्ति के लिए उनके दिल में एम्पैथी, जिसको कहते हैं सहमर्मिता, वो होना ज़रूरी है। दूसरा है कि खुद के अंदर उनको देखना और उनके अंदर खुद को देखने की एक शक्ति होनी चाहिए। For us, political readiness can be articulated through a 6 capital framework that we've created after speaking to almost more than 400 people about what does it take to really do politics and do different kinds of politics. And these capitals are arranged in a circle and there's no ranking, and there's also a lot of interconnection between them. There's intellectual capital, there's social capital, there's political capital, there's financial capital, network capital and moral capital. And in our programs, all these 6 capitals are covered through the sessions that we do. And even when they're away between the residentials, our sessions really focus on building each of these capitals to help people assess on their own where they are in their political journey, which capital do they need to really build on to progress in their journey and become the kind of leader they aspire to become. जो क्वेश्चंस मैं कहीं ना कहीं ढूंढ रही थी, अकेले खोज रही थी, वो उन क्वेश्चनों को अकेले खोजने में मुझे कहीं ना कहीं बहुत सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था। तो उन दुविधाओं के जो सुलझाने का जो काम है वो पूरा आईएसडी टीम की वजह से हुआ है। इसमें मेरा बौद्धिक विकास, मुझे लगता है कि बौद्धिक विकास हुआ है। फंड रेजिंग को लेकर जो भी क्वेश्चंस थे कि हमको अगर चुनाव लड़ना है तो फंड रेज कहाँ से किया जाएगा, किस तरीके से आपको, कहाँ पर आप उस चीज़ के लिए कमज़ोर हो और आप कैसे अपने आप को मजबूत कर पाओगे, तो उस चीज़ को समझने में और उन सारे प्रश्नों के जवाब को सुलझाने में कहीं ना कहीं आईएसडी का पूरा प्रयास रहा है। उन नज़रियों को, हमारा जो धुंधलापन था उस नज़रिए को पूरी तरीके से उन्होंने साफ किया है और कहीं ना कहीं उन पूरी पूंजी के ऊपर मेरा फोकस
करवाया गया है, और उन पूंजियों को भी मैं अभी तक मैं ठीक से समझ नहीं पाई थी, पर यहाँ पर जो चीज़ें सेशन में बताई गई है और ISD टीम का जो पूरा सहयोग रहा है, उसके नज़रिए से मैं अब सारी कैपिटल्स को, सारी पूंजियों को मैं मेरे मन से, विचार से मैं समझ पाई हूँ कि वास्तविक स्थिति में वो क्या क्या चीज़ें हैं। मेरे राजनीति में मुझे आने का जो मतलब मोरल रीज़न रहा है वो काफ़ी हाई रहा है। मैं काफ़ी आदर्शवादी सोच के साथ राजनीति में आया हूँ, और आम तौर पे अभी का जो करेंट पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें उसको अप्रिसिएट नहीं किया जाता है। लेकिन इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा मेरे अपने पॉलिटिकल लाइफ में, वो ये रहा कि उसको एक स्पेस मिला कि मैं उस पर कम से कम सोच सकता हूँ, कम से कम उसको बिल्ड कर सकता हूँ। ग्राउंड पे वो कैसे दिखेगा, जो हम मेरे हेड में, मेरे हार्ट में जो सोच है, जो भावना है, वो ग्राउंड पर कैसे दिखेगा। Keeping inner work as one of the significant rivers in the curriculum of the Good Politician program is an experiment that we are committed to. We are imagining leaders who are able to listen to themselves. We are imagining leaders who are able to enter a space with empathy. We are imagining leaders who can enter with social skills that enable them to not only listen to themselves but listen to the other and find a way of dialogue. And that is why we feel inner work is important in a political leadership. और ये सब बच्चों से मिलकर मुझे अच्छा लगा कि इनमें एक इस बात का उत्साह है कि राजनीति में पॉजिटिव तरीके से हम कैसे जा सकते हैं, और राजनीति में हम जिसे हम कहते हैं वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, ये हम कैसे कर सकते हैं। और वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स होना चाहिए, इट इज़ अपार्ट फ्रॉम पार्टी। पार्टी बैनर क्या है, कौन सी पार्टी का है, ये सेकेंडरी है। मुख्य बात यह है कि जब हम राजनीति में काम करें तो पहली बात जो सोचें वो इस राष्ट्र के बारे में सोचें कि हम देश को अच्छा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देश है तो हम हैं। आज के युवा को पॉलिटिक्स को दो हिस्से में डिवाइड करना। वन इज पॉलिटिक्स व्हिच इज एजिटेशन, ऑपोजिशन, दैट इज यू कैन डू दैट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आल्सो। द सेकंड इज पॉलिसी मेकिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिसी मेकिंग के लिए आपका जो माइंडसेट है वो अलग माइंडसेट की आवश्यकता है, बिकॉज जब समाज, पॉलिटिक्स, पार्टीज बहुत डिवाइडेड है, तो आई बिलीव आज सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो मुझे लगता है सच्ची तरीके से एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ में बात होना, संवाद होना, समझ लेना, समान तरीके का एक रवैया देखने का तैयार करना, ये सब काम स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी जो कर रहे हैं आप, उसमें से युवा वर्ग को एक जरूर एनर्जी मिलेगी, सकारात्मक दिशा मिलेगी। और किस तरीके से आप देखेंगे 2050 में, आपको तो पता है सबसे यंग लोग कहाँ होंगे दुनिया में, तो भारतवर्ष में है। तो ऐसे युवाओं को अभी से इस तरीके की दिशा देना और उनके साथ में काम करना और उसके लिए एक स्पेस देना बहुत ही अच्छी बात है। ISD टीम को, प्रखर को, हिमाक्षी को, उनकी टीम को मैं कम से कम 1-2 साल से जानती हूँ, और मैंने इनके जो शुरुआती ख्याल थे जिसकी वजह से इकट्ठा हुए थे, इन्होंने मूवमेंट बनाया, तब से लेके आज तक मैं इनका प्रोग्रेस देखे जा रही हूँ। और आज इस कोहॉर्ट से मिलके और इन नौजवानों से, देश के अलग अलग प्रांतों से आए हुए लोगों से मिलके मेरे मन में इतनी खुशी है और इतना उत्साह है कि इंडियन पॉलिटिक्स का फ्यूचर और इंडियन ग्रास रूट्स मूवमेंट का फ्यूचर सही हाथों में है। I feel fully confident that the proof of concept is in place now, and in years to come, India will have genuinely good सर्वोदयी politicians. का पवन का लग जाए काया धूल हो जासी, ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। कूटता छाती झूठा कूटता छाती है, जैसे ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी।